The reading for today is reading 32, passage 2, Sources, Sounds of the Ocean. Okay. So the first thing we do, we'll go and check what sort of questions are there. Okay, first set of questions is true, false, and not given. Second set of questions is which paragraph contains the following information. And third set of questions is MCQs. Okay, so there are 5 MCQs. Which paragraph contains the following information 4 and true, false, not given 4. Okay, so we will set about doing this reading. The first thing we do is read the questions. We'll read the questions in one go. I would request you to keep yourself muted and unmute yourself only if you have to ask something. If there's any query, unmute and then remute. Okay. So first 2 questions that we will see here, that we can see here are: in the past, difficulties of research carried out on moon were much easier than that of the oceans. Okay. And the second, so is what is the Hindi of this? How do you translate? What does it mean? What does the question mean? Anybody of you? मैम पास्ट में चांद पे जाना सोखा था और ओशियन की रिसर्च से. Very good. Okay. The same light technology used on investigation of moon can be employed in the field of ocean. इसकी हिंदी करो हरप्रीत. मैम जो लाइट टेक्नोलॉजी है वही जो मून पे यूज की थी वही ओशन की फील्ड में भी यूज की जा सकती है, कैन बी यूज्ड. अच्छे से करो, की जा सकती है. ओके ओके, सो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे. सो वी विल सी मून की बात यहीं पे हुई है. पहला क्वेश्चन मून से ही कंपैरिजन का है ना, राइट? इट इज अ कंपैरिजन विद द मून. Difficulties of research carried out on moon were much easier. Okay, so it is a comparison with the moon. So अब देखो यहाँ पे moon और ocean की यहाँ पे comparison है. Okay, distant as it is, the moon has been far more accessible to study because astronomers have long been able to look at its surface, first with the naked eye and then with the telescope, both instruments that focus light. अब देखो उन्होंने बोला है मून फार मोर एक्सेसिबल टू स्टडी है, और यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ है वी न्यू लेस अबाउट द डेप्थ्स देन वी डिड अबाउट द सरफेस ऑफ द मून. पहली लाइन में ही आंसर है, सॉरी जो मैंने नहीं पढ़ी थी. द ओशंस ऑफ अर्थ कवर मोर देन 70% ऑफ द प्लैनेट्स सरफेस, येट until quite recently we knew less about the depths than we did about the surface of the moon. तो क्या होएगा आंसर? ट्रू. हाँ ट्रू होएगा, बिकॉज वही बात करी है ना. क्वेश्चन में कहा है कि डिफिकल्टीज ऑन रिसर्च कैरिंग आउट ऑन मून वर मच इजियर. रिसर्च मून पे इजियर थी, और यही ये कह रहा है कि हमें मून के बारे में ज्यादा पता था देन ओशन, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली एक्सेसिबल था, जो मैंने पहले पढ़ी थी. ओके, सेकंड क्वेश्चन था the same light technology used on investigation of moon can be employed in the field of ocean. अब देखो True. ये भी ट्रू है. ऐसा ही लग रहा है जहाँ आपने पढ़ा. होना चाहिए. Being able to look in at the surface first with naked eyes and with the telescope, देखो, both instruments. हाँ ये दोनों चीजें मून को देखने के लिए यूज हो रही है ना, नेकेड आई भी टेलीस्कोप भी. अब क्वेश्चन कह रहा है the same light technology used on investigation of moon can be employed in the field of ocean. अब ocean में वही light technology use हो सकते हैं. आगे देखो, यहाँ पे देखो, light which can travel trillions of miles through the vast vacuum of space cannot penetrate very far in sea water. हाँ देखो, लाइट जो है वो वैक्यूम, जो स्पेस में जो वैक्यूम है जहाँ पे एयर भी नहीं है, खाली एरिया है, वहां पे लाइट जो ट्रेवल कर सकती है ट्रिलियंस ऑफ माइल्स, वो बहुत ज्यादा दूर तक सी वाटर में नहीं जा सकती है. सी वाटर में नीचे तक आप ऊपर से जितनी मर्जी बीम दे दो, नीचे अंधेरा ही रहेगा. ठीक है, तो लाइट वहां ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो वी कैन नॉट यूज दैट. सो आंसर इज फॉल्स. ओके,
अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे एक साथ. Research on the depth of ocean by method of sound wave is more time consuming. अब जो डेप्थ ऑफ ओशन पे साउंड के मेथड से जो रिसर्च करनी है वो ज्यादा समय लेता है. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाइड्रोफोन्स टेक्नोलॉजी इज एबल टू डिटेक्ट द कैटेगरी ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो जो हाइड्रोफोन्स की टेक्नोलॉजी है वो प्रेसिपिटेशन को डिटेक्ट कर सकती है. ओके, सो वी गो टू द पैसेज. हमें दूसरा आंसर मिला था बी में. ओके, ए में ही मिल गया था दूसरा आंसर. तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ ओशन बाय मेथड ऑफ साउंड वेव रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग. यहाँ पे डेप्थ बी पैराग्राफ में, बी पैराग्राफ में टाइम कंज्यूमिंग की बात हुई है कहीं? Not given. मैम नॉट गिवन. मैम यूजिंग अ लॉन्ग ट्यूब टू लिसन अंडर वाटर. हाँ, वो यूजिंग ए लॉन्ग ट्यूब टू लिसन अंडर वाटर है, तो हमें दूर तक साउंड पता चल जाता है शिप है कि नहीं है. ये लिखा They हुआ recorded how fast the sound of the submerged उन्होंने रिकॉर्ड करा. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिसर्च करते हैं डेप्थ ऑफ ओशन में साउंड वेव की, वो रिसर्च हमें हमारे लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. उस रिसर्च के टाइम की कहीं बात हुई है? नहीं हुई मैम. No, ma'am. So No, that ma'am. will be not given, and you find the last answer. Hydrophones technology is able to detect the category of precipitation. Hydrophones की टेक्नोलॉजी, हाइड्रोफोन कहाँ पे है, कौन से पैरे में है? मैम एक तो ई पैराग्राफ में है और एक जी पैराग्राफ में है. ओके, अब ई में हाइड्रोफोन्स टेक्नोलॉजी देखो. I'm not. हाँ, No, not in G. It H. एक E में है और एक H में है. ओके, तो ई में देखो हाइड्रोफोन्स है वर्ड. एंड क्वेश्चन है हाइड्रोफोन्स टेक्नोलॉजी इज एबल टू डिटेक्ट द कैटेगरी ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होती है? मैम रेन बारिश. रेन रेन के बारे में यहाँ पे तो है नहीं कुछ. कितनी मेजरमेंट के लिए होती है रेन की. हाँ, हम H में है इसका आंसर. okay. Nishchan has used hydrophones to listen to rain over the ocean, acoustically measuring not only the rainfall rate but also the rainfall type. अब अगर आपको प्रेसिपिटेशन का पता है कि उसका मतलब रेनफॉल है, तो आप आंसर फिर कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे इसका. ओके, और ये कह रहा है इट इज एबल टू डिटेक्ट द कैटेगरी, तो आंसर क्या होएगा फिर? ट्रू. True. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. एंड सो अब 14th का आंसर, चारों क्वेश्चन हमने कर लिए. 14th का आंसर जो है ये दिस इज ट्रू. 15th का आंसर फॉल्स है. 16th का नॉट गिवन है. 17th का ट्रू है. मैम 16 एक बार यहाँ से बताना, बी के लास्ट में क्या दे रहे हैं? रिसर्च ऑन द डेप्थ ऑफ ओशन बाय मेथड ऑफ साउंड वेव इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. बी के लास्ट में मैम. बी के लास्ट में है. बी के लास्ट में है what these investigators demonstrated was that water, whether fresh or salt, is an excellent medium for sound, transmitting it almost 5 times faster than its speed in air. तो जो साउंड की स्पीड है एयर में, उससे 5 टाइम्स तेजी से साउंड पानी में ट्रैवल करता है, ये बोला है उन्होंने. अब क्वेश्चन कह रहा है जो डेप्थ ऑफ द ओशन में जो रिसर्च है साउंड वेव की, वो जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसका कहीं जिक्र नहीं है. ठीक है, सो दैट विल बी नॉट गिवन. नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इज व्हिच पैराग्राफ हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. हम ये ना एमसीक्यूज के बाद में करते हैं. ठीक है, तो वी हैव 1 2 3 4 5 एमसीक्यूज. लेट अस सी. और एमसीक्यूज के आंसर्स छोटे छोटे हैं, तो हम चारों पढ़ लेंगे. हु ऑफ द फॉलोइंग is dedicated to the research of rate of sound. कौन सा इनमें से कौन सा डेडिकेटेड है टू द रिसर्च ऑफ रेट ऑफ साउंड? लियोनार्डो डा विंसी, आइजैक न्यूटन, जॉन विलियम स्ट्रट, चार्ल्स स्टर्म. ये 4 नाम है. किसने रिसर्च रेट ऑफ साउंड के मतलब ज्यादा करी डेडिकेटेडली? तो लेट अस सी हु इज गिवन दिस, किसने रिसर्च करी ऑन द रेट ऑफ साउंड.
मैम बी पैराग्राफ में आइजैक न्यूटन हाँ। लिखा हुआ है सर। आइजैक पहले तो लियोनार्डो डा विंसी इन्होंने ऑप्शन दिया, उसने भी कहा है कि उसने भी sound- थोड़ा बताया कि साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। फिर आइजैक न्यूटन ने भी बताया, कॉल आ रही है मुझे, ओके। फिर आइजैक न्यूटन ने भी बताया, ठीक है। इसने भी बोला थोड़ा बहुत। But who is dedicated to the research of rate of sound? यहाँ पे लिखा हुआ है, but it was not until Charles. 1826 that Charles. Daniel Colledonus Charles. and Charles Sturm, a French mathematician, accurately measured its speed in water. Speed in water is the rate of sound, ठीक है? Using a long tube to listen underwater, they recorded how fast the sound of a submerged bell traveled across Lake Geneva. Their result per second in water of this was only 3 meters per second off for the speed accepted today. What these investigators demonstrated was that water, whether fresh or salt, is an excellent medium for sound, transmitting it almost 5 times faster than its speed in air. So they were dedicated to actually measure, okay, the rate of sound. तो चार्ल्स टर्म है आंसर, क्योंकि डैनियल कॉलोडन तो नाम ही नहीं है उसमें, तो ये दोनों ने करा था, तो इनमें से इसका नाम है, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who explained the theory of light or sound wavelength is significant in water? मैम Who explained that the theory of light or sound wavelength is significant in water? हाँ जी बोलो। मैम जो आपने आंसर बताया वो ए था, मैंने की हुई है रीडिंग में इसलिए दिख रहा था, अच्छा, मुझे भी रॉन्ग लगा था। अच्छा ए आंसर। हाँ जी, बुक के पीछे जो आंसर दिए हुए हैं ना उसमें ए था। अच्छा ए, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। 30 सेकेंड रीडिंग है ना, 30 सेकेंड रीडिंग, 20 सेकेंड आंसर, बेटे डी है। ओके सॉरी मिस्टेक। डी है, डी, ठीक है, डी। डी है। Who explained that the theory of light or sound wavelength is significant in water? इसने इनमें से बोला कि theory of जो है ना light or sound wavelength is significant in water. अब wavelength significant water, ये देखो keywords आप। सी पैराग्राफ में। सी पैराग्राफ, ओके। लॉर्ड रेले। हाँ, ये देखो, the recipient of the Nobel Prize for Physics in 1904 for his successful isolation of the element argon, Lord Rayleigh made key discoveries in the field of acoustics and optics that are critical to the theory of wave propagation in liquids. Among other things, Lord Rayleigh was the first to describe a sound wave as a mathematical equation and the basis of all theoretical work, and the first to describe how small particles in the atmosphere scattered certain wavelengths of sunlight, a principle that also applies to the behavior of sound waves in water. So, wave propagation in liquids. तो यहाँ पे question कह रहा है, who explained that the theory of light or sound wavelength is significant in water? तो ये किसने explain करा? यहाँ पे कौन सा नाम है? Lord Rayleigh. Lord Rayleigh. लॉर्ड रेले। Lord Rayleigh is the answer, ठीक है, यही आंसर है। Next question देखो। According to Fox and colleagues, in what pattern does the change of finback whale calls happen? तो फिनबैक वेल की जो कॉल्स हैं किस पैटर्न में होती हैं? फिनबैक वेल एक वेल का नाम है, उसकी जो कॉल्स हैं, वो जो आवाजें निकालती है, वो किस पैटर्न पे चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू फॉक्स एंड हिज कलीग्स? एक तो चेंज इन वेरियस सीजन से चेंज होती है, दूसरा चेंज इन वेरियस डेज से चेंज होती है, तीसरा मंथ से चेंज होती है, चौथा ईयर से। अब देखो ये फॉक्स एंड कलीग्स कहाँ है और फिनबैक वेल कहाँ है? F में है।
F पैराग्राफ में. ओके ओके. मैम ये मिडल में ही, पैराग्राफ के मिडल में ही है. फॉर एग्जांपल फॉक्स के लिए डिटेक्टेड चेंजेस. हाँ, for Whales example, during fox and different tweaks have detected changes in the calls of finback whales during different seasons. So फिर क्या आंसर होएगा? seasons. Seasons. A will be the Change in answer. various seasons. Seasons. A will be the answer. ठीक है, ये easy था. कुछ easy होते हैं, थोड़े कुछ difficult होते हैं. Next is, in what way does the SOSUS technology inspect? Same paragraph. हाँ, ये पहले ऑप्शंस देख लो. इन व्हाट वे डज द सोजस टेक्नोलॉजी इंस्पेक्ट वेल्स? कौन से वे से ये टेक्नोलॉजी वेल्स को इंस्पेक्ट करती है? सबसे पहले तो ट्रैक ऑल काइंड्स ऑफ वेल्स इन ओशन. पहले तो सारी तरह की वेल्स को ओशन में ट्रैक करती है. ट्रैक बंचेस ऑफ वेल्स एट द सेम टाइम में बंचेस ऑफ वेल्स को ट्रैक करती है. ट्रैक ओनली फिनबैक वेल इन द ओशन. सिर्फ फिनबैक वेल को ट्रैक करती है. ट्रैक वेल्स बाय यूजिंग मल्टीपल अप्लायंसेस और डिवाइसेस. तो मल्टीपल अप्लायंसेस यूज करके ट्रैक करती है. So this is in C only. Yes, मैम F में है. Same paragraph. F में F. Yes, ma'am. Moreover, they can track. इसी के नीचे थोड़ा सा. Okay, यहाँ पे है. Okay. Moreover, Using the SOSUS, scientists can track the whales in real time and position them on a map. Moreover, they cannot track just one whale at a time, but many creatures simultaneously throughout the North Atlantic and the Eastern North Pacific. तो many whales at a time. तो कौन सा आंसर होएगा? ये है B. बी होएगा ना. ट्रैक बंचेस ऑफ वेल्स एट द सेम टाइम. ठीक है, मेनी बंचेस होते हैं उनके झुंड. ठीक है. What could scientists inspect via monitoring along a repeated route? तो एक ही repeated route को monitor करके scientists क्या inspect कर सकते थे? Temperature of the surface past, उसका temperature of the deepest ocean floor का temperature, variation of temperature कैसे vary करता है, and fixed data of temperature. अब repeated route देखो and temperature देखो कौन सी पहले? G paragraph है. G में. G paragraph. D में last line है. G में last line है. Okay, Yes, ma'am. repeated measurement. Yes, Okay. ma'am. By repeated measurements along the same paths over time, scientists could track changes in temperature over months or years. तो कौन सा आंसर होएगा? Variation of temperature. Variation का synonym है change. Change. अगर ये पता है तो फिर आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा. That is the answer. Answer is C, variation of temperature. ठीक है. Now we have one set of questions that is left. That is, which paragraph has the following information? अब इसको थोड़ा सा देखो. पहले शायद एक आध आंसर आपको वैसे ही पता हो, आपने कहाँ देखा है. Elements affect sound transmission in the ocean. Elements जो sound transmission in the oceans को detect करते हैं. चलो ये नहीं अभी पता चला. Relationship between global climate and ocean temperature. Examples of how sound technology help people research ocean and creatures in it. Sound transmission underwater is similar to that of light in any condition. अब हमने ये देखना है कौन कौन से पैरे में ये है. ठीक है. अब हमने इन चारों की ना, देखो 4 क्वेश्चंस है. You have 6 minutes. तो सिर्फ 4 है ना, तो 1 मिनट में आप इन चारों को अच्छे से पढ़ के इनकी ट्रांसलेशन कर लो अपने माइंड में, और फिर जैसे जैसे पैरा देखोगे या कीवर्ड देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा ये कौन से पैरे में है. मैम 20th तो अभी किया है ना, वो वेल्स के साथ क्रीचर्स को भी फाइंड करते हैं. हाँ, वो किया अभी. तो ये कौन सा आंसर था? F में पढ़ा था आपने. सो Yes. एक आंसर आपको फटाफट मिल गया. 1.5 मिनट जो आपने लगाना था, बाकी क्वेश्चंस करे हुए थे. तो एक भी मिल जाए ना तो टाइम बैलेंस हो जाता है रीडिंग का. रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या है? टाइम की. अगर हर बच्चे को मैं 15-20 मिनट आधा घंटा ज्यादा दे दूं ना उस रीडिंग में, किसी के भी 6 से कम नहीं आएंगे. ठीक है. थोड़ा पढ़ के करोगे, अच्छे से धीरे से करोगे तो आ जाएंगे. सिर्फ टाइम फैक्टर होता है जिसको आपने ओवर पावर करना है विद प्रैक्टिस, सो दैट विद इन एन आवर आपके पूरी रीडिंग्स के 3 पैसेजेस हो जाएं और थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाए देखने के लिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर. एक आंसर आपको मिल गया F. अब हमने देखने हैं कौन से एलिमेंट साउंड ट्रांसमिशन ओशन में इफेक्ट करते हैं. ग्लोबल क्लाइमेट एंड ओशन टेम्परेचर का कहाँ पे है रिलेशनशिप, एंड साउंड ट्रांसमिशन अंडर वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ लाइट इन एनी कंडीशन. ठीक है. अब हम देखते हैं, ये तो अब ढूंढने पड़ेंगे आपको.
मैम ये 18th का डी पैराग्राफ में होना चाहिए। मैम डी में एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का वर्ड डी में है। Elements, ओके, लेट्स सी। chemicals, मैम chemicals, मैम ऊपर में ही है, थोड़ा ऊपर। सी वाटर एब्सॉर्ब 30 times। स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द ओशन, यहाँ पे है। मैम फर्स्ट लाइन से क्लियर हो रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स। A number of factors influence how far sound travels underwater and how long it lasts. So, हाँ, तो ये number of factors, ये elements है ना, वो सारे for one particles in sea water can reflect, scatter, absorb certain frequencies of sound, just as certain wavelengths of light may be reflected, scattered. ठीक है? So ये यहीं पे specific chemicals भी दे दिया, elements आ गए, magnesium sulfate ये आ गया, ठीक है? Boric acid आ गया. So Yes, ये ma'am. है, so this answer is in D. And और ये जो साउंड ट्रांसमिशन अंडर वाटर लाइट से सिमिलर है, वो भी यहाँ से नहीं मिल रही। जस्ट एज वेवलेंथ ऑफ लाइट में बी रिफ्लेक्टेड स्कैटर्ड, वैसे ही कोई भी पार्टिकल सी वाटर में उसको रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये कंपैरिजन है। तो आपको दूसरा आंसर नहीं मिल गया एक डी का, जो 18th का आंसर वो भी डी है। यस ठीक है, दैट इज ऑल्सो डी। अब ग्लोबल क्लाइमेट का जिक्र कौन से पैरे में हुआ है, ये देखो आप। मैम जी पैराग्राफ में जी जी। पैराग्राफ में हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट का जिक्र। सी Sozus has also proved instrumental in obtaining information crucial to our understanding of Earth's weather and climate. तो ये जो क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल क्लाइमेट एंड ओशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे the ocean plays an enormous role in नीचे determining air measurement। temperature, यहाँ पे है ना, तो this is the relationship। तो आंसर इज जी पैरा में ही है ग्लोबल क्लाइमेट का जिक्र, और साथ में उसका रिलेशनशिप विद दैट। ठीक है, मैम ये measurements that are keep puzzling out working, इससे भी क्लियर हो ही रहा है heat हाँ। transfer between ocean and atmosphere। हाँ जी, तो वो ओशन और एटमॉस्फेयर का क्लियर हो रहा है। अच्छा, एसेस कौन से करने हैं आज? चलो, we'll open the book and we'll do some more of the miscellaneous category today. ठीक है? And pardon? एग्जाम है तो थोड़े जल्दी करा देना। कौन से? 20 को मेरी एग्जाम है। हाँ, जीटी के ऐसे भी थोड़े बहुत लेना। जीटी बुक से करवा दूंगी आज, कोई बात नहीं, उससे करा दूंगी। ओके। चलो, मैम डायरेक्ट करवा दो। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमने कल भी करे, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन करे? ठीक है, yes मैम। वो तो हो ही जाते हैं ना। तो we'll get back, we'll start the class at sharp 10:45, right? Okay, ma'am. Okay.